नमस्कार, मैं हूं अनिल गंगो। सियांग अंग न्यूज़ लाइव के इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सियांग के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे पिछली बार मैंने कहा था, हम लोग फिर आएंगे नई हस्ती के साथ। तो इस बार हमारे साथ है श्री ताइक गोई जी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड चेयरमैन। तो आइए उनसे मिलते हैं। सर को तो मैं जानता हूँ पर्सनली भी, लेकिन भी आप लोगों के लिए सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ताइक गोई, मोरी विलेज, सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू। ओके सर, तो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि आप एज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं इस बार, तो आपका सपना क्या है 32nd कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? थैंक यू सियांग एवं टीम। सपना तो बहुत है, लेकिन पहले एमएलए तो बनना पड़ेगा। मेरा सपना बहुत है, जो खुद देख रहा है वहाँ पे पिछड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया हमारा। और अरुणाचल में एमंग द 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज ताती तुरुंगोंग जो है बहुत पीछे जा रहा है। इसलिए मैं इस बार डिसीजन लिया है, मैं कंटेस्ट करूँगा और डेवलपमेंट फुल स्पीड में मैं लेके आऊँगा, सोच रहा हूँ। थैंक यू। तो सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारा प्रोजेक्ट सियांग में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जो कि स्पेशली वहाँ के 32nd कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो चलिए प्रोग्राम को बढ़ाते आपको पहला सवाल दिखाया जाए। तो पहला सवाल आया है श्री डेनियल पागो जी का, जो कि है वोंगने विलेज से। तो आइए सुनते हैं इनका सवाल। अभी का जो यहाँ में आप लोग यहाँ इतना मुश्किल करके मेरा बस्ती में, मेरा बोगने में आया हुआ है, उसके लिए आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी का आप लोग जैसे अभी Hello everyone. So right now I'm in Regional Science Center, and inside this I'm in Brain Science Lab. So today I learned many new things, and ma'am taught us some skills, which how to memorize words and things easily, doing the visual and making up stories and from the related words. And it was very fun and easy way to learn, and the methods were very nice. And I don't think that I will ever forget it. And thank you, ma'am. Thank you. Hi, I'm Pungat Siruk, and I'm from THS Homes Rajpur. And right now I'm in Regional Center, Science Center, and from it I'm in the Brainy Lab. So ma'am had taught us how to memorize ma'am had taught us some skills about how to memorize fast. So the way ma'am taught was really active, and it was enjoyable, and we have learned new skills from it, and thank you so much. I'm Prisha and I'm from Sriram Centennial School, and this is class 10B, and this is my class, and all of us are here to learn mnemonics. And over here I think we had a great experience. Learning is something that all of us struggle with as science students. There's so many terms to learn, so many things to learn. It's such a vast subject, and coming here it was a good experience. It was a great experience because it was so much easier to learn and grasp everything. Does everyone agree? Yes. Okay, let's go. Dear parents, have you ever wondered about what truly goes on in your child's mind during the learning journey? At Nesol's Brain Science Laboratory, we introduce you to the Mind Machine, a revolutionary tool designed to unveil the mysteries of your child's mental state, ensuring they reach their full potential. The Mind Machine utilizes advanced technology to measure galvanic resistance and electrodermal activity, providing real-time insights into your child's mental state. From the happiest state of mind, indicating optimal learning conditions, to signs of stress that might be hindering their progress, the Mind Machine covers it all.
For parents, this is a golden opportunity to connect with your child on a deeper level, understanding their needs and providing support where it's needed the most. Don't let this opportunity pass by. Bring your child to Nesol Itanagar and give them the gift of a balanced and focused mind. Together, we can unlock their full potential and set them on a path to success. The future is bright and it starts with the Mind Machine. And you know it is free. You do not have to pay for the checkup. Nesol is here to guide you and your child. Together, we can turn challenges into opportunities and nurture excellence for a brighter future. लिए आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी का आप लोग जैसे अभी मुझे सवाल किया है हमारा ये 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का बारे में और मेरा बोगने का बारे में, तो here is many problem at my village, बोगने विलेज। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इसका जो नेटवर्किंग है। आजकल का ज़माना में सभी जगह में नेटवर्क है, टावर है, क्या क्या है, लेकिन बोगने जो है हमारा बस्ती जो है 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सबसे बड़ा बस्ती है, सबसे बड़ा बोतरलीस भी है यहाँ। तो ऐसे में अभी तक यहाँ में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, अभी तक नेटवर्क नहीं आया है और मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। जैसे सुनने में तो आया है कि जो बोगने का जो मेडिकल स्टाफ है वो भी आराम से काइंग में बैठा हुआ है, तो उधर से ड्यूटी आता है कि नहीं आता है उसको भी मालूम नहीं है। और हमारा बोगने में सबसे बड़ा एक जिससे हम अपना आप को हम बोगने का है करके बोलता है वो है हमारा पानी खेती। वो पानी खेती जो है ये जो अब सियोम नदी देख रहा है, ये सियोम नदी जो है हमारा बोगने का सब ये खेती को ये जो है मतलब ये प्लाट जो है जब भी थोड़ा सा मानसून स्पेशली इन मानसून सीजन में थोड़ा सा बारिश होने से भी पानी बड़ा होकर हमारा खेती को ख़त्म कर रहा है। तो इसके लिए हमारा ये स्वर्गीय दिबंग तताक का समय में उसने इसमें एक प्लाट कंट्रोल भी बनाया था। तो उसका वजह से अभी भी हमारा बस्ती का मोस्ट ऑफ द जो हमारा खेती है अभी तक सेफ है। तो हमारा इसमें एक खेती का नाम है जिसका नाम कोलेग रिंगमंग करके है। तो वो कोलेग रिंगमंग जो है हमारा बचपन में नए बोलने से भी 20 पूरा 15 पूरा ऐसे कुछ लगभग था। तो अभी तो देखने में तो ये तो 1000 या फिर 1000 स्क्वायर मीटर ही है अभी ये, मतलब इसमें अभी कुछ भी खेती है ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो भी एमएलए कैंडिडेट्स है, जैसे हमारा दिबंग तताक जी ने इतना अच्छे से काम किया था, जो भी इस बार कैंडिडेट जीत के आएंगे आप लोग बस कृपया करके इसको आप लोग देख दीजिएगा, क्योंकि इसका वजह से ही हमारा बोगने जो है फेमस भी है और ये खेती का वजह से ही हम लोग बोगने वासी अपना लाइफ गुजारा कर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और बोगने विलेज हमारा 32 रुंगोंग में वन ऑफ द पॉपुलस विलेज, सही में वोटर्स भी वहाँ ज़्यादा है। और जो बोगने का जो पानी खेती जिसको बोलता है वो बहुत बड़ा है और कंप्लीट 100+ जो पॉपुलेशन है, 100+ जो हाउस पॉपुलेशन, अराउंड 140-50 हाउस पॉपुलेशन है, कम्प्लीटली उसमें डिपेंडेंट है। और ये सियोम नदी का वजह से एवरी ईयर जो ज़मीन लेके जाता है प्लाट आने से, स्पेशली समर सीजन में, ये सिर्फ फॉर्मर एमएलए फॉर्मर मिनिस्टर दिबंग तताक सर उनका सिर्फ समय में नहीं हुआ है, ताम्यो तागा सर का समय में भी प्लाट कंट्रोल वहाँ लाया है और प्लाट कंट्रोल बांध भी बनाया था। मैं खुद भी विटनेस हूँ। और ये प्रॉपर एक वे से इसका अभी करना पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, जो इसको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसका साथ आप बातचीत करना पड़ेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन, उसमें बात करना पड़ेगा। परमानेंट सॉल्यूशन तो सही है,
इन केस मैं कल को जीत के आता है, एमएलए बन के आता है, तो ये एक प्रायोरिटी में तो है, मेरा दिल में ऑलरेडी प्रायोरिटी में है, क्योंकि इसी पानी खेती का वजह से हमारा वहाँ हज़ारों लोग, वहाँ से सबसे एवरीथिंग खाना पीना वही से मिलता है, और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है, मैं भी सोचता हूँ। फिर हेल्थ इशू का बात आता है, ऐसे भी पॉपुलेशन बहुत बड़ा है बोंगने विलेज, और फिर काइंग दूर है, वहाँ इमीडिएट जो इमरजेंसी केसेस को ले जाने के लिए भी तकलीफ़ है, वहाँ ब्रिज भी नहीं है। तो बोंगने में जो हेल्थ सेंटर, वहाँ प्रॉपरली एक गठन करना पड़ेगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम है, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, उनका ही काम है। और हमारा विधेयक जो भी आता है, मैं खुद भी आऊँगा तो भी उसको डीएमओ के साथ टाई अप करके वहाँ में रेगुलर स्टाफ, मिनिमम 2 रेगुलर स्टाफ वहाँ पक्का वहाँ बैठाना पड़ेगा। उनके लिए आपको एक क्वार्टर देना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ भी देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ में हेल्थ मेडिसिन जो जिसका बारे में मेडिसिन इश्यूज़ के लिए डॉक्टर तो नहीं होने से भी कंपाउंडर जो वहाँ रेगुलर बैठना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ सुविधा हमको निकालना बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्किंग तो आजकल बिना नेट से तो आजकल बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं भी बोंगने में किसी को यहाँ से कांटेक्ट करता है तो स्विच ऑफ आता है। जब तक उनका पानी खेती में जब तक इन लोग नहीं आता है तो वहाँ किसी को कनेक्ट नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा इशू है। ये तो बहुत इशू होने से भी ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएट ये सॉल्व हो जाएगा। ये कोई मेजर इशू नहीं है, मतलब बहुत जल्दी इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। सुपाक आपना मुलुक तातितुरुम को कॉन्स्टिट्यूंसी sok एमएलए साइम लुने दत्तिना कादुं सुपाक न्यू साइम लुने ताई गोई दलको tahan mebang tajabonung nulung aume kom haim ludula inko nuluk मैनिफेस्टो को कादुन हेलो नु इनको मतलब क्या विजन देखता है तातितुरुमों के लिए दमो इनके लिए नुलुम दलोक के नुलु पब्लिक केरा दोलुंगे नुलु इनके दो नो दम इबे मुदुम लो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बताओ अपना मैनिफेस्टो को। हाँ ठीक है, जब पालन जो मेरा सौथा भाई है जो एक मैनिफेस्टो जिक्र किया है, ये बहुत अच्छा बात है। जो भी विधेयक बनता है कुछ तो एम लेके, कुछ मैनिफेस्टो लेके तो ज़रूर आना है। लेकिन अभी देखिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में है, वहाँ पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, लेकिन अपना इंडिविजुअल मैनिफेस्टो 1-2 तो ऐड होगा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। उस मैनिफेस्टो में तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो रोड कंस्ट्रक्शन, कनेक्टिविटी, देन एजुकेशन, थर्ड हेल्थ, ये 3 सब्जेक्ट 3 पॉइंट्स मैं लेके इस बार मैदान में मैं उतरूँगा। और मैं अगर एमएलए विधायक बनता है तो मैं उनका अपना जो मेरा जो कैपेसिटी है पक्का जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। शायद इनका सवाल थोड़ा केरंग विलेज को लेके भी, एक स्पेसिफिक केरंग विलेज को लेके शायद डेवलपमेंट केरंग विलेज के लिए आपका विजन क्या होगा उसमें? केरंग विलेज में तो इस बार ऑलरेडी हम लोग स्टेट में जो केरंग ब्रिज को इस बार स्टील ब्रिज, आर्क ब्रिज बनाने का जो प्रपोजल ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली भेजा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे प्रायोरिटीज़ में इस बार ऑलरेडी एडिशनल लिस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सर और हमारे सोनामेन सर उनका नेतृत्व में वहाँ प्रायोरिटी में दिया गया है। और इस बार पक्का मैं उम्मीद करता हूँ इस बार ब्रिज को भी पक्का सैंक्शन होगा। ये केरंग के लिए, केरंग विलेज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसका ब्रिज का बिना फिर केरंग का जितना भी बोलो वो अधूरा रहेगा। और ये जब तक ब्रिज नहीं बनेगा केरंग के लिए ये तो कोई मीनिंगलेस है, डेवलपमेंट मीनिंगलेस है। फर्स्ट केरंग ब्रिज तो हम लोग को जैसे भी सैंक्शन करके लाना है। ठीक है। ngo nolum siang
news ke party mo ai rum dong ngoluk dolu hok jamno mongu dolu hok abiname iname ngoluk dolu hu dadina inkue problem development ati i name kangedu idokom hilok di ibimang ie kuam ngo huak ke leader ha na kedingem ngo ludung ngoluk especially hi mongku dolu ngologe hi bedang engona ko kadung him ngoluk inkue dolunga himengol airu bedang imola midung delok ngoluk skule education sector lo lumelokom ngoluk upper primary school jomlo mongku ke kedinga teacher quarter kamang delok school boundary hilok di kamang delok ngoluk school lo hilok di agari amang pedomilo halamang ye kuam teacher kedinga kom ngoluk kohol yeline kom yelimang inama heke problem kedim wak leader ha na kedinga nolu kabila mil aidu delok ngoluk dolung hi ngoluk inkue hiang gihan lega sports lo lumelo kom ngoluk ada pil football ground kom hilok dia kom pit pan mang drainage ate kamang iem pedonga hilada kelekal imilo ngoluk ingkolamang football tulang kumang iem hikom ngoluk botro na problem ko idu delok ngok aso kaname ngo nisi dolung kidingam kom ngo kayum tung iname especially ngoluk hi upper belt hi no siang district hi kaname hilok dia kom takame taga kum moyum dung paglamilo him kom wak leader ana kedinga togala pelagi dung ngolu edit kol dolunga mi ekum ni la de kalekal idung idom korsa bari de ke idung iname tadung holo inkwe ke hoga PMA wai inko skime ke kadung dung idokom hilok keding ngokana me yebom na leader e kom him ai implement imang de beda him tulu ename kamang beda hitu takam ngoluk 32 holo ye ke dolunga kom bedange kakidungai idokom no lobu alang kula pedonga hi imilotu bedange gari angkumang hibotru na problem ko idung hinyingkom ngoluk mongku especially beda wakom nolu hi siang eung party kom aat apa nol gari ke yonga apa beda kom hinying ket yela iname kom ngolu aga leader del anyong kom ngolu modot kumang ye kom ngolu aga dolunga donation ihila JCB la hila hinying kom ngol ihitoku hekapak atikede him paglamilongok miname wak leader ha ena kedinga ngok mongku dolu him kom ye bulde him IBM togeladun de leader hala pelagi du ngoluk medical hitu domong medical holo ngolu istabam kom ngolu lulamang kal lulaman belo staf quarter kom kamang PSC mludung itu kom ati ingko kamang hilok dia kom ati ingko kamang belo technician kom kamang ya no baro baji nam ingko kumang dakam duty ila enyum bekayoyum dung iname afternoon session nok ingko kakumang staf kakumang hikom botero na problem ko dung him imona hikom ngoluk ke belo ai well established imang ki belo teacher kuat ya sorry doktor kuatar ati kamang deka ati problem lok ati kede lendung iname him ati kede him huak kelunam public menam ati him ibila pelagi dung huak ke leader ana de delok dem togalama melo ngok menam be 32 hok leader ko hayem kom lukamang kom aidung iname ngodem medung yebul de him togaladung de public ngoluk ingkuam wak ngoluk memorandum type lulik nam atihim togelana amide be manifesto him atihim be adola ingko dola ngolum lengkan dola be contest la pelagi dum ngomui dola ngok agong holuri do ठीक है जो तापुर में जो बोला है ठीक है वहाँ का जो मोंको विलेज का मेजर इशू तो है लास्ट टाइम सोलुंग फुटबॉल जब टूर्नामेंट हो रहा था मैं वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ आया था जो फर्स्ट फुटबॉल जो ग्राउंड का रिलेटेड में बोला है मैं खुद वहाँ अनाउंस किया है
वो बस्ती वाला ने कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि मोंकू विलेजर जो अभी है उस हमारा जमुना सर्कुल का माने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स मोंकू से ही था और आज भी है। लाइक ताराम मुझे है, उस ज़माना में भी बहुत था, जैसे तंगांग मुझे भी कुछ बहुत बेस्ट प्लेयर था। ऐसे टाइप का प्लेयर अभी वहाँ उम्र चला गया और अभी नया पीढ़ी में भी बहुत अच्छा सा प्लेयर है, लेकिन उनका फुटबॉल ग्राउंड को मैं जब देखा है तो वो तो बिल्कुल प्रॉब्लम है, उसमें ड्रेनेज नहीं है सही में, और वहाँ फील्ड भी एक समान नहीं है, मतलब अप एंड डाउन है। तो मैं खुद वहाँ जाके अनाउंस किया था, कल को मेरा एमएलए बनता है तो मैं फर्स्ट ये 1 साल का अंदर ही ये ग्राउंड को मैं ठीक कर देगा, ये मैं बोल के आया हूँ। ये तो और शायद बताने का और ज़रूरी नहीं है। फिर इनका एक रास्ता जो बोला है, बस्ती के अंदर में एक रोड बनाया तो है, लेकिन वहाँ सोलिंग मेटेलिंग नहीं है, सोलिंग नहीं है। एटलीस्ट सोलिंग तो हो जाना चाहिए था। जब तक सोलिंग नहीं होगा वो रेनी सीजन में कहाँ गाड़ी तो जाएगा ही नहीं, वो रास्ता काट के भी मीनिंग नहीं है। तो ये तो सोलिंग तो बहुत ज़रूरी है। और स्कूल रिलेटेड जो मेडिकल रिलेटेड तो हर जगह में ये प्रॉब्लम है। जितना ताटी तुरुंगोंग में कहाँ एक प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग कहाँ है, कहीं भी नहीं है। ये तो किसी को बोल के फ़ायदा नहीं है, तो हो गया। लेकिन आने वाला जो एमएलए है वो प्रायोरिटी रखना है। मेडिकल में पहले भी बोला, मेडिकल, एजुकेशन और रोड, ये तीनों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी में देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल, उसको फर्स्ट देखना चाहिए। और मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी से लास्ट 25 to 30 ईयर्स पार्टी में काम किया है, और हमारा फर्स्ट स्लोगन भी है पार्टी का, नेशन फर्स्ट। उस हिसाब से देश के लिए और एरिया के लिए हमको फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी हो देना है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो हर जगह में इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा ताटी तुरुंगोंग में क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है हमको मालूम नहीं है, उसका आइडिया भी नहीं है। कारण ये तो बहुत ज़रूरी है। जो सबसे गांव में जो सबसे जो गरीब है उनको चुनना चाहिए, और उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना, इसका तहत हमको घर देना है, बिजली देना है, पानी देना है। ये तो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है और ऑलरेडी गवर्नमेंट का प्रोग्राम में भी है। लेकिन सही में हम तो दिखाई नहीं दे रहा है रुमगोंग में अभी कहाँ में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया है, हमको भी दिखाई तो नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है वो तो बेस्ट नोन टू सिटिंग एमएलए। अभी इसका बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जब मैं आऊँगा ये पक्का ज़रूर देखेगा। कारण हमको भी ऐसे सिखाया है, जो सबसे गरीब को हमको जब तक नहीं देखेगा, उसका उन्नति हमको जब तक नहीं देखेगा, तो देश को भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो हमारा पार्टी का प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी सब में यही हम लोग का हर दिन गुण गाता है उसका बारे में। वक नलुक इनका नाम लेगा लुबिया दोलु होक के ngो आते केनमांग इदोकम केनमा पामांग कम दोलु होक आला इनका नाम आगम दम लुबी पे लगी है कायलाम लुमिलो ngoluga mo hu mo ung tu mo lom pen ha beda hi kom ai mang him kom kayun tajun dimel ai do emele ngolu ai do lung emele he ido kom huak lo beda ngem ilama tu delok ke bimu mo lom penam he kom konte gem bulu ilamo tung ido kom gari dugla mang beda nga deg lega nolum bulum takam huak inka nam lega lubidong ai nam ai manam dem nolu bulu takame kabilangka delok ke ngolu molom dolung ara hokke molom dolung arahi kali du nengolo ahi paip kom kamang kail ahi paip de kamai do melokon no kana bukiding ikunam ahi paip longolo hakum tila do kera yenam delok ke iname paip kamam lulang ngolum he tame taga ke minister ido holo pilot project em lalik bitu idokom ahirung amang bi edilo dedication em ito di delok ahi ongkune huag longol ahi pama dek second last holo
जे स्कीम कम लुला आतो आना में दे मिनु आगलो है ekum lo ilik biam lula aminem hengem ayin to kolem atto ido kom huak lo ngoluking je skim ahide kom amadung deg lega lubi dungo iname hime de poinau aki iname angona iskule he ingo kakumang tisar kakumang de lo ke ko kidingem dakeng private school lo le intola sirip molom dolu huak primary school amin gemola dune siri bonunga kum koko iko kadung de petom tisar du bom name deg lega him kom nolo izun bilangku iname huak ido kom nolom lubidung je scheme kom angka to de kom ibimang de lok skule de kom paibem lalik tum ludung de kom ahi kamang de lok lega nolu bulu takame ko kakumang bas tisar kakumang deg lega molom dolu ate kidinga piram na koda idung deg lega nolungak ingka nam lega lubidu ingka ma men ngolu tu dolu lok duna ami atirum ken ma du hidung kaidu de mula du du deg lega nolum bolum takamem leader kidingem idokom dekem idokom aye kabilang kam diko kemba sa adung lubidu kodung idokom ati ilama dung deg lega huak ngoluk main point mibom na metania ahi lok turdung iname ahi lok turdung je scheme him dei idokom nolu Malik bilang kui kam langok nolum takamem kum name देवों को पक्का गो में हाँ ठीक है। ये मोलम बस्ती का जो डिमांड्स है वो भी पॉइंट्स तो ठीक है। इसमें वो रुमगोंग टू मोलम एंड मोलम टू बिंगोंग रास्ता का बारे जिक्र किया है। देन पानी बिल्कुल इस बार पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ये 3 पॉइंट्स बोला है। इसमें देखिए मैं नंबर 1 JJM जल जीवन मिशन जो स्कीम चल रहा है, हर गांव में ये स्कीम चल रहा है और इसमें हर घर में नल में जल जो चल रहा है ये तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो तो बता रहा है कि स्कीम आया था वो इस बार फेल हो गया बोल रहा है, तो कैसे फेल हो गया वो तो ढूंढना पड़ेगा। स्कीम तो उधर दे चुका है, गवर्नमेंट भी तो बार बार 1-2 साल के अंदर में एक स्कीम को कैसे देगा एक बस्ती में, ये तो इन लोग निकलना पड़ेगा कैसे फेल हो गया, ये तो छानबीन करना है। ये तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल बस्ती वाला जो है कैसे फेल हो गया फर्स्ट ढूंढना है, कारण अभी दिया है कैसे अभी 1-2 साल के अंदर फिर कैसे स्कीम देगा, ये बात है एक तो। फिर दूसरा रुमगोंग तो जो मोलम रास्ता जो PMJSY का रास्ता चल रहा है उसका भी तो एक पीरियड होता है, PMJSY का भी तो। PMJSY स्कीम सेंक्शन करके काम ख़त्म हो गया और सर्टिफिकेट दे दिया, रास्ता चल रहा है, पेमेंट फुल पेमेंट भी हो गया, लेकिन उसका एक पीरियड होता है मेंटेनेंस का पीरियड, उस हिसाब से तो देखना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल के अंदर में रास्ता फिर ख़त्म हो गया, फिर PMJSY रोड उसको कनेक्ट करो, ये तो शायद नहीं हो पाएगा होगा मेरे हिसाब से। लेकिन दूसरा SIDF में कर सकता है ज़रूर, वो तो स्टेट और लोकल MLA का ऊपर है, वो कर सकता है। जहाँ तक तो मोलम और बिंगोंग का रास्ता है मैं तो कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, ऐसे सुना है लेकिन देखा नहीं है। लेकिन वहाँ बस्ती वाला का कहना था रास्ता तो बनाया है, बिंगोंग जाते समय सब गाड़ी जाता है, लेकिन मोलम जब रिटर्न आता है तो ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता है, ये सुनने में आया है, लेकिन कहाँ तक सच है मैं खुद नहीं देखा है। तो उनका भी किस स्कीम से सेंक्शन किया है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसको भी फिक्स करना है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसी में है, कॉन्ट्रैक्टर जो सेंक्शन करेगा 50 लाख का 1 करोड़ का और काम करेगा 10 लाख का, उस हिसाब से हो रहा है शायद। अदरवाइज़ जो अभी 1-2 साल भी नहीं हुआ है, रास्ता अभी कैसे ख़त्म होगा, वो तो कौन कॉन्ट्रैक्टर किया उसको, और कौन सा बस्ती वाला तो कमिटी होगा ना, रास्ता बनाता है तो उधर में सेंक्शन होके आता है तो एक कमिटी तो गठन करना है, उसका कमिटी में निगरानी करना है। ये मैं उल्टा बस्ती वाला को बोलता है। और वहाँ फिर कैसे इस बार रास्ता बने फिर कैसे दोबारा उसको सेंक्शन करेगा, ये तो आपको
JJM और इस रास्ता का बारे में तो आप लोग कमिटी बना के छानबीन करो कैसे ये फेल हो रहा है, ये मैं आपका सामने रखता हूँ। ऑलरेडी वहाँ से हमारा ADC हेडक्वार्टर तो रुमगोंग है और AAC हेडक्वार्टर काइंग है। ये दोनों को कनेक्शन करने के लिए ताम्योतागा सर का समय में जो मिनिस्टर था किरेन रिजिजू दोनों मिलके 39 करोड़ निश्चित से लाया था मोलम टू बोंगने कनेक्टिंग रुमगोंग ADC हेडक्वार्टर तो ओकाइंग, उस हिसाब से कनेक्टिंग का एक प्रोग्राम बनाया था कनेक्शन का। वो तो इस बार फेल हो गया। सुना है रुपया भी निश्चित का 39 करोड़ भी रिटर्न चला गया, तो वह रास्ता अभी आएगा ही नहीं। तो उनका जो टेंडर बीट किया था, हम सुना है एशियन एजेंसी जिसका मालिक है तारिक तालम, उनको मैं पूछा है किस लिए ये काम नहीं हो रहा है। वो मेरे को कागज़ दिखाया है जो कोर्ट ऑर्डर, वो तो टेंडर बीट किया था लेकिन उसको मिलने नहीं दिया, कैंसिलेशन ऑर्डर करो बोल के लोकल MLA भी लिखा है। ये तो सबूत है, मैं वो पॉलिटिकल मोटिव से नहीं बोल रहा है, वहाँ लिखा है। तो उनका कैंसिल हो गया, फिर वो कैंसिल होते होते वो कोर्ट चला गया तारीख, वो भी स्टे लिया है। होते होते 4 इयर्स में इनका 1 रुपया भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। उस हिसाब से पैसा भी अभी सुना है तो वापस चला गया है। ये हो रहा है हमारा 32 रुमगोंग में। तो रास्ता तो सही है लेकिन पैसा भी जाने देता है, ये हो रहा है, रिटर्न जाने देता है तो अभी वो लैप्स हो गया। अभी फिर वहाँ तो फिर रुपया नहीं देगा ना हमको। गवर्नमेंट जो है बार बार एक जगह में कैसे वो सेंक्शन करते रहेगा, एक सिस्टम है ना, उस हिसाब से उधर हो रहा है शायद। थैंक यू। First of all, Mr. Tajing Jarang, I am from Mori village. Namang Mori dolu hok, ngokuak ngoluk 32 ya ngolung Mori dolu holok. Kuimang hamang the problem tabung lega wak ngoluk 2024 coming election lega wak MLA high munak kidi nolume ngo atiko ingkada. Ina mengok pars question hempaidung. Ngoluk PWD, Rumbong PWD road to Mori Dere Gidang. Holoke waga ngoluk bedang aimang. Ina mahimgo ye MLA me kom lungumang candidate me kom lungumang. The present MLA em kom lungumang wak contest ye emla inakiri him kom lungumang. Ina me in case no kalko ngoluk MLA 32 holo MLA ye kumilo hi ngoluk मोरी के बिग प्रॉब्लम बदा है ngoluk बिग प्रॉब्लम है कि हुआ गया कालंग का ngok गाड़ी आलोंगे कम दोलू तेल हालंग कुमंग इम हिंदों ngolu में इबियन इबी माइन देंगok फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इदुं की राइट हुआ पक ngoluk इन दिस ईयर ngoluk मोरी UPS स्कूल हिम है हुआ गया अपग्रेडेशन इकाई इकुना में होलो सेकेंडरी इकाई इकुना में हिंगोलुक का हुआ गस तीसर क्वार्टर प्रॉब्लम है तीसर है कम प्रॉब्लम दूं बदंग कम्युनिकेशन है कम प्रॉब्लम दूं ये हिमनोलु वो बाइने मेंशन माय इदम हुआ कनोलु कॉन्टेस्टिंग MLA हायम लुना किदी नोलु हिम इबियन इबी माय थर्ड क्वेश्चन है इदुं की ngoluk मोरी PMGSY रोड 0 पॉइंट बकैला पब्लिकली ngoluk डिमांड है ngoluk ही इस स्ट्रीम को का दूं इस स्ट्रीम आरे तो दिन आरिगा का दूं till today bulu takam helut idung hulo melo ye kom helut I kuna kamang ina mahimno ngoluga itering mangam ngolum dung itering mang ka problem hime no kabi en kabi main port na pangolu problem runam ako na idung ki ngolug dolu holo any emergency ko kaime ngolu behkul kamang deke kamang eke kamang akon gari ngolu ambulance type idung they particularly on behalf of Mori torob log de mangolu bangwara holo ngol lutidung yem particularly ngolu me Mori hime de ngom he jang Mori ko ido request dung ku Mori hime special privilege ko dolu him ngolum bihikui ka ngolum botte ngol demand maye idokom ben type kolai holo Mori gida telongolum me
particularly ambulance lebi kuika de ngoluga mori hologa demand akone wa ke present MLA no mun request dung the happen na nolu mun request dung ina me nolu ngolu me mori himba जैसे भी model bless को कुलीबी का एमला नलम को request दूँ it's my last question but not the least इना मैं गो last question नहीं दूँ कि गो वाके MLA present MLA में कम लूँ और देख के वाके contest ना group नलम कम लूँ ngolu मोरी ही geography के लिए ngolu मोरी center दूँ इना मैं लॉर्गिंग दमदा मोरी जमोई मोबुक ये मैं ngolu कहीं center लो इदूँ geography के लिए ये ngolu मोरी होगा डिमांड आपको ना लॉन्गेस्ट डिमांड आपको ना ngolu एक यहाँ मोरी में सब सेंटर चाहिए इना में ngolu हलो मोरी बोलने से में ngolu गेबो तरफ हलो हक्कोदान हलो ताकि लॉगिंग दम देखो में ओंगे दो पे इमरजेंसी आती है ngolu सॉल्व ला दो पे ngolu मोरी गेबो हलो ngolu एक सब सेंटर चाहिए सर आपका जवाब जब आप ठीक है ये तो मेरा अपना बस्ती है और जो क्वेश्चन रेज किया है मेरा अपना मिसेस का भाई है। अच्छा मैं उनका प्रपोजल को जब अच्छे से देखा है और इतना प्रपोजल देने से भी होने वाला नहीं है। एक MLA को भी तो बेचारा एक माने हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हर विलेजेस को देखना पड़ता है और एक विलेज में आप 5 से स्कीम को करेगा बोलेगा वो जूत रहेगा और मैं कभी पोल्स प्रॉमिस करना नहीं चाहूँगा। अच्छा ये मेरा चाला जो है उनका 10 इयर्स से सिटिंग MLA का साथ था। ठीक है 5 इयर्स में MLA बना है, MLA बन के 5 इयर्स ख़त्म होने जा रहा है। उनका प्रपोजल जो है क्यों लास्ट में अभी बोल रहा है, उस समय क्यों नहीं किया है, ये भी बात है। और हमको सुनने में आया है गुड ऑनरेबल MLA जो है वह मोरी स्कूल अपग्रेडेशन का तो कुछ प्रॉमिस किया था। ठीक है वो तो हो गया, मैं उसके लिए मैं उनको प्राइमरी से अभी मिडिल से अभी सेकेंडरी मैं उसके लिए उसको भी थैंक्स देता हूँ जिस हिसाब से अपग्रेडेशन हो गया। लेकिन उसमें बहुत बड़ा इशू है, मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहा था। एक्चुअली अपग्रेडेशन से पहले थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट बनाना चाहिए था, प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में देना चाहिए था। आप अपग्रेड नहीं करके भी इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर क्वार्टर, हेडमास्टर क्वार्टर, ऑफिस, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। क्लासरूम तो रिक्वायरमेंट जब वहाँ सेकेंडरी स्कूल होगा 10 रूम तो चाहिए, कम से कम 10 रूम्स तो चाहिए। फिर क्लासेस, फिर एक हेडमास्टर रूम चाहिए, एक कॉमन रूम चाहिए और एक स्टाफ रूम चाहिए और हेडमास्टर का एक कम से कम क्वार्टर तो होना पड़ेगा। फिर ऑफिस का स्टाफ का भी कुछ क्वार्टर होना पड़ेगा, टीचर का तो जरूरी है ही है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नील है, अपग्रेडेशन तो कर दिया, उसमें बहुत बड़ा समस्या होने वाला है क्योंकि टीचर तो जब तक क्वार्टर नहीं होगा टीचर तो बैठेगा भी नहीं, फिर इरेगुलर होगा, फिर उसका भी जायज़ है इरेगुलर होने का। जब तक क्वार्टर नहीं है तो आलो से आएगा, दूसरा दूर दूर गांव से आएगा, फिर क्लास नहीं होगा, फिर क्लास भी अभी एक्सटेंशन नहीं किया है। क्लास भी तो जो मिडिल स्कूल जो क्लास था अभी हुई है सेकेंडरी में क्लासरूम, फिर स्टूडेंट्स कहाँ बैठेगा क्योंकि स्कूल का सामने ही मेरा घर है, वहाँ बैठने से आप दिखाई देगा 11 बजते स्कूल स्टूडेंट जो है चला जाता है छुट्टी बोल के, क्योंकि क्लासरूम का तो कमियाँ है ही है, टीचर का भी कमियाँ है ही है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो फर्स्ट बनाना ज़रूरी है, ये तो कोई नहीं बोलने से भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम पक्का ज़रूर 1 साल का अंदर कुछ तो करेगा। और PW रोड टू मोरी जो रोड है उसका
टाइम भी ओवर हो गया। PMJSY रोड जो हमारे ले दिवंग ततक सर का टाइम में रास्ता तो दिया था, बनाया था, लेकिन उसका बनाने का बाद भी रास्ता प्रॉपरली वहाँ PMJSY रोड जो कॉन्ट्रैक्टर कौन था मालूम नहीं है, उस हिसाब से प्रॉपरली नहीं बनाया था। 1-2 साल के अंदर ही रास्ता तो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मेंटेनेंस भी नहीं है, ऐसे चल रहा है। तो हमारा ऑनरेबल खुद प्रॉमिस किया था उधर, सुना है स्कूल इंस्पेक्टर और रोड के लिए वो खुद बोला था कि हम पूरा यहाँ फुलफिल करेंगे, लेकिन नहीं हुआ है। प्रॉमिस तो हुआ था लेकिन नहीं किया है। तो ये 2 पॉइंट तो मेरा दिल में रखा है। हम एज ए मोड़ी का अपना बस्ती का कैंडिडेट होने का नाते ये तो कोई नहीं बोलने से भी, ये तो हम प्रायोरिटी तो मन में बना के रखा है। बाकी जितना ये करो वो करो स्कीम बोलने से भी वो बाकी बात का बात, लेकिन फर्स्ट रास्ता देन स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैं प्रायोरिटी देगा। और जहाँ तक तो मेडिकल का बात, वो गाड़ी का जिक्र किया है, उसमें शायद गवर्नमेंट का कहाँ ऐसे सिस्टम होगा। एम्बुलेंस तो वहाँ बिना मेडिकल एम्बुलेंस गाड़ी देगा ही नहीं, मेंटेनेंस कहाँ से आएगा, ड्राइवर ड्रामा कहाँ से आएगा, तेल कौन देगा, ये इशू आता है। इसलिए हमको समझना ज़रूरी है, कारण हवा में फूकने से वो नहीं होगा, उस हिसाब से कहीं भी शायद नहीं होगा। हाँ, मेडिकल जैसे रुमगोंग में है, काइंग में है, उनके लिए तो मेडिकल एम्बुलेंस तो ज़रूरी है। वहाँ तो पक्का नहीं होने से भी एक तो ब्रांड न्यू इस मेडिकल में ब्रांड न्यू एम्बुलेंस तो देना है, ज़रूरी है। लेकिन हमारा गांव का जो सवाल है, जो हमारे चाला जो बोला है, वहाँ बस्ती में एक गाड़ी देना है, वो तो सिस्टम तो शायद मेरा हिसाब से नहीं है। हाँ, सब सेंटर तो डिमांड कर सकता है, वो सब सेंटर मेडिकल सब सेंटर तो गवर्नमेंट को डिमांड करना ज़रूरी है। उसके लिए तो फाइट कर सकता है, और मैं भी फाइट करूँगा उसका जो नेसेसिटी को देख के, वो तो पक्का ज़रूरी है। मेडिकल हेल्थ इशू भी बहुत बड़ा है, तो क्यों आलो लेके जाना पड़ता है, तब तक रास्ता में आदमी देहांत हो जाता है। उसके लिए ये इशू तो जेन्युइन है। मॉडल विलेज तो हम आइडिया नहीं है, बस्ती तो ऐसे डिस्कस शायद नहीं किया अभी तक, जो बोला है, लेकिन ऐसे हमारा सुनने में नहीं है, ऐसे कुछ प्रपोजल हम नहीं सुना है। गाँव वाला जो है हमको कभी डिस्कस नहीं किया अभी तक। मैं खुद बस्ती का हो, वो तो जानना पड़ेगा ना। आप मॉडल विलेज आप बोलेगा, लेकिन उसका साइड भी तो सही है ना। अब वहाँ रास्ता बनेगा, वो जैसे जरांग ताजिंग बोला है, वो रास्ता भी इन प्रपोजल दिया था। वहाँ मालिक निकलता है, रास्ता का बनाएगा, कटिंग शुरू करेगा, मालिक निकलता है। मॉडल विलेज कहाँ बनेगा, एक तो ज़मीन भी तो होना पड़ेगा ना, उस हिसाब से वही है। मेरा और तारती रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं 1-2 शब्द आप हर एक कैंडिडेट, एस्पायरिंग कैंडिडेट को पूछना चाहता हूँ। मैं पांगकेंग से बिलोंग करता हूँ। पांगकेंग का एक प्रेसिडेंट कंसल्टेटिव एरिया डेवलपमेंट कमेटी का हूँ। मैं ताराम तामिन हूँ। मेरा ये सवाल है कि हर एक कैंडिडेट, एस्पायरिंग कैंडिडेट को आने वाला 2024 इलेक्शन का, तो एस्पायरिंग कैंडिडेट को मेरा एक क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है, पांगकेंग टू शिपेंग बुंगुंग रोड का कुछ फिनिशिंग होने देगा आप? ये मेरा एक क्वेश्चन है। बल्कि यहाँ 3 गांव की ओर से कवरेज है ये रोड। 2 नंबर क्वेश्चन है, हमारा एरिया का जमलो, स्पेशल जमलो एरिया का पेशिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, पांगकेंग अपर मिडिल स्कूल, तो अभी तक ऐसा दीपांग लाइक का ये है, ना टीचर है, ना साइंस टीचर है, ना मैथमेटिक्स टीचर है। तो आप सब कोई एमएलए बन जाके ये सब एजुकेशन सेक्टर को पूरा कर सकेगा, फुलफिल पब्लिक का सेटिस्फाई में। और पांगकेंग टू पेशिंग टू पांगकेंग जनरल रोड, हम लोग का RWD एग्जिस्टिंग रोड, देखिए अभी ऐसा सर पर चर पड़ा हुआ है।
जबकि गाड़ी चलने का लायक नहीं है। पेशिंग एरिया, जमलो एरिया, कहीं किसी गांव में गाड़ी चलने का लायक भी नहीं है। आप चौक भी चल रहा होगा, आप एस्पायरिंग कैंडिडेट भी कुछ कुछ ये किसी का घर में कैंपेन करके भी घूम रहा होगा। तो ये सब क्या करेगा आप सब? हमारा तारती तुरुमगोंग का एस्पायरिंग कैंडिडेट को ये मैं पूछना चाहता हूँ, कल को एमएलए बन जाके ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को गांव-गांव में आप उसको पहुंचा सकेगा? ये फंक्शन का जो तराम तमिन जो एक यहाँ पॉइंट्स रखा है, 1-2 पॉइंट्स रखा है, तो ठीक है। PMGSY जो रोड है बिंगोंग पंकंग तो बिंगोंग रोड, शायद ये काम चल रहा है और स्टेटस तो क्या है अभी मेरा अपडेट नहीं है। तो अभी वहाँ जो भी सुनने में आया है, गाड़ी तो बिंगोंग का सामने तक जाता है। और मैं लास्ट टाइम खुद विजिट किया था, सिपेंग तक, पंकंग से सिपेंग तक तो जा रहा है रास्ता, गाड़ी चल रहा है, मैं खुद गया था। तो कहाँ तक इनकम्प्लीट है, कहाँ में लेकुना है, उसका मेरा आइडिया नहीं है। लेकिन ये तो एक विधायक का तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसमें, उसको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और डिपार्टमेंट को कहाँ में लूपहोल है उसका देखना है, और वहाँ जो तकलीफ मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को या डिपार्टमेंट को, उसको भी जो विधायक है, लोकल विधायक, बात करके जल्दी से जल्द इसका टाइम बाउंड एक प्रोग्राम रख देना चाहिए। इस बार आप ख़त्म करो, पेमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो आपका पेमेंट भी रुकेगा, उस हिसाब से कर सकता है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मॉनिटरिंग भी इसका तगड़ा है। शायद जो एजेंसी है RWD, उनका भी ड्यूटी बनता है, वो उसका भी केयरलेस होता होगा। वो केयरलेस नहीं होने से, वो सीरियस होने से तो ये तो शायद अभी तो कंप्लीशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं भी इसमें सीरियस मैंने मेरे भी ये पॉइंट सीरियस लग रहा है। कारण यहाँ से पंकंग से बिंगोंग, सिपेंग देन बिंगोंग, फिर वहाँ आगे जाके मोलम देन रुमगोंग मोपुंग कनेक्ट, इसी से ही होगा, एक अल्टरनेटिव रोड होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। उस हिसाब से मैं भी सोचता हूँ इसका जल्दी से जल्द ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए क्या कमियाँ है उसको छानबीन करके पक्का करना चाहिए। ठीक। ina masiang ang news noluk hok beda dolu hok ala ngolu ngomong ke na mai rumui do ngolu dolu ngamie office lo gilang kom nula mai deng nolu hok a la lu nam dem ngo ai do mu ina ngolu dolu hok ngolu ingo ko di problem dun tuang noluk ke lu bie noluk inko nolu ngolu bie ngolu dolu holo problem ngoluk ayu mainly na aum ko kadum aum de akon de damda tu ragbung tu damda PMJ se route tu eloge ko patuma ke join nam lega ngolu me MLA bedang molik bitung idakom daga ngolu gari motor pul do wa kom yomang dem MLA bi wak present MLA bi ludung bi ingko tu ngolu kom kendung bi ka ko sem kira ke bilik tung idak kom wak kom len mada sanction mada dem ngolu akon e muidung de ngolu dam de kom dem jorui dung dek we kom jorui dung dek ngolu log dolung om kadung dolung om de model ralung de ke beg de takam de dolung de pipe dolu de dem do kardung inam dem JCB ida ngolu muidung ida kom huag imang MLA bu tawasem biliktung ina mang huag yebu de MLA hain huag present holo 2024 lo MLA contest ina kidingen huag kom muidung ye pala ine kom ye pala ine kom nolu dem ibila pelagi dek dem ibila pelagi model muidung delok anyina ngolu beging ragbung tu damda PMJ se route ina PMJ GSY route lok ke latel begi dolu tel bedang moluk tu
yang berang mo lug le kom tel hwa kom pisu thamang pedonga ho e milo thubu ga bugla boje ko demes la dolunga mi voluntarily agirem boje ko dudbin lodum longa gelik dong dak aum na ngolu PMJS GSY route to ralung dere telo dem MLA kera kai ingotong scheme bila itung idokom hining ke ari hokom len mang de nam dem kom ngo ludung hining ke ha na kiring ludung ye ilai ne kom ilang kadak MLA ma huak ke MLA kom ngodem amun mun mai mu e da kom huak ke MLA kom ludung holo ning ko holo sans ko kai milo en ko SIDA blokom lig bilahem kom ito kadak de ilang mulakom bile ko pai ko dam lokom dem ngolo enko jese bi dem ibilai ka na doru taka ma ngolo mudung pedongam gari halamang dak pedongam gari pedongai mulo longalon ni ko halang kumang gari amo ba silib dung ko de na dem wa ko na aum na luga bleg dung ठीक है लॉगिंग का जो बारे में रास्ता का बारे में उसने जिक्र किया है ये मेरा एक सीनियर भी था मेरा भैया ही है उसका पॉइंट्स इशू जो है बहुत ही स्टिक है एक पॉइंट एजेंडा है ठीक है ये हमारा ऑनरेबल जो फॉर्मर मिनिस्टर तागा साहब का समय में रागपुंग टू तामदा देवुक ये PMJSY में सेंक्शन करके रास्ता अभी चल रहा है दामदा तो चल रहा है तो PMJSY का रास्ता जो है जनरली वो उसका ब्रेथ जो है कम होता है तो वहाँ ऑरेंज भी ट्रक लेके जाता है ऐसे तो मोटरेबल रोड तो हो गया रास्ता तो ठीक है अभी चल रहा है लेकिन ये हमारा लॉगिंग विलेज एंड दामदा विलेज में लॉगिंग में मॉडल है रालुंग है मैं वहाँ भी विजिट कर चुका है दामदा भी मैं ऐसे पर्सनल लेवल में न्यू ईयर में विजिट किया था तो वहाँ भी मैं बोल के आया है हमारा 32 रुमगोंग का जो दामदा एंड लॉगिंग ये विलेजेस बहुत ही रिसोर्सफुल विलेज है वहाँ लाइक ऑरेंजेस वेजिटेबल्स इवन जो हाथी मिर्चा बोलता है एक फार्मर को हम पूछा है तो वो कितना हाईएस्ट इनकम हुआ फार्दे बोला है तो एक बार तो 20,000 मिला है एक दिन में और ऑरेंज का तो अभी इतना वहाँ अच्छा है प्रोडक्शन अच्छा है ऑरेंज का तो वहाँ में जब छोटा जब ऑरेंज होते ही वहाँ एडवांस में पैसा दे के जाता है तो वहाँ में हम लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है क्रिएट कर सकता है बागान जिस हिसाब से ज़रूरी है अभी ऐसे क्रिएट नहीं किया है उसको विलेजर्स को वहाँ में सेल्फ सफिशिएंट हम लोग बना सकता है हम देखा है उसका मिट्टी जो है सोना है उसका मिट्टी सोना है उसमें कहीं भी सब्जी डालो कुछ भी डालो एकदम बहुत बढ़िया और प्रोडक्शन हमारा आलो मार्केट में वहाँ का ही सब्जी चलता है तो अभी डायरेक्ट दामदा तक नहीं मैं MLA बनेगा ये रोड हम यक्सी कनेक्ट करेगा पक्का और 2 साल का अंदर में पक्का हम यक्सी कनेक्ट करेगा ये तो हम बिल्कुल ये सेकेंड थॉट नहीं है पक्का हम चैलेंज करता है ये तो हम 2 साल का अंदर कनेक्ट करेगा यक्सी कनेक्ट करने से पैदा क्या है वहाँ से संगम ब्रिज बहुत सामने है पासीघाट से गाड़ी आएगा गुवाहाटी से आएगा वहाँ डायरेक्ट कलेक्शन होगा लोकल प्रोडक्ट्स कलेक्शन होगा उसमें पैदा क्या है गाड़ी का जो चार्ज जो है कम होगा क्योंकि अभी आलो से गुर के पतुम ब्रिज से फिर हमारा रागबुंग जो है मेरा बस्ती का सामने से जाके फिर दामदा जाओ फिर दामदा से रिटर्न आओ अब पतुम तो यक्सी कनेक्ट करने से क्या होगा वहाँ हार्डली आपको 20 मिनट में संगम ब्रिज पहुँच जाएगा तो 20 मिनट का जगह में यहाँ 2 घंटा लगभग लगता है तो उस हिसाब से वहाँ का जो इकोनॉमी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना
बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पा रहा है। और बागान का जो गार्डनिंग का मैं बिल्कुल इस 2 बस्ती को मैं प्रायोरिटी देगा और वहाँ पक्का गार्डनिंग का बहुत बढ़िया होगा। गार्डन करो आप बोलेगा, लेकिन उसका सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा ना। वहाँ प्रॉपर फेंसिंग चाहिए, वहाँ गार्डन करेगा, बागान करेगा, खेती करेगा, गाय का देगा, मेटन का देगा, तो उसमें बिल्कुल हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है नहीं कर पाता है, कारण उसका हाजिरा चाहिए। फिर फेंसिंग करने के लिए तो बार बार नहीं सीखता है, परमानेंट फेंसिंग भी तो सही है ना। इसलिए वहाँ ये स्कीम तो पक्का मैं दूंगा और बिल्कुल ये रोड तो हम पूरा एक से कनेक्ट कर देगा, ये मेरा वादा है। और एक जो बोला है कि पतुम से जो एक हामलेट है, जो बेगिंग विलेज, छोटा सा विलेज है, उसमें किरण रिजिजू सर जब मेरा बस्ती में एक दिन कैंपेन के लिए आए थे 2014 में, तो जो इलेक्शन कैंपेन के लिए आए थे उसमें किरण रिजिजू खुद वादा करके गया है, मैं PMJSY रास्ता दूंगा बोल के। सही में दिया है वहाँ, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, बेगिंग जो है एज पर द नॉर्म्स वहाँ PMJSY रोड जो है उसका नहीं हो सकता है, नहीं दे सकता है। लेकिन किरण उस समय मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट था, उसने स्पेशल कंडीशन लगा के उन स्पेशल कैटेगरी में वहाँ रास्ता दिया है। अच्छा, रास्ता तो दिया, सैंक्शन तो हो गया, लेकिन गाँव वाला का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब रास्ता कहाँ से जाएगा वो तो अब दिखाना पड़ेगा। वह ज़मीन का मालिक जो है वहाँ ऑब्जेक्शन कर रहा है, रास्ता जो प्रॉपरली ऐसे अच्छा से जाना चाहिए था नहीं जा पा रहा है, उसका वजह से भी वहाँ बिल्कुल ठंडा दिन में भी गाड़ी नहीं जा पाता है वहाँ पे। तो आप सोलिंग मेटलिंग करो वही होगा। इसलिए आपका बोलने में इजी है, लीडर को एक ऐसे करो वो करो, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो गाँव वाला भी है ना, हम खुद भी है, सबका, एवरी सिटीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट देगा तो वहाँ कमिटी बना के प्रॉपरली उसका इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट तो जब तक तो गाँव वाला साथ नहीं देगा नहीं कर पाएगा। उस हिसाब से वहाँ में रास्ता जो है सही में तकलीफ है, क्योंकि मेरा बस्ती का एकदम सामने है, नज़दीक है। मैं भी बहुत सस्ता हो वहाँ बेगिंग जाके आएगा, लेकिन बहुत ऊपर में है तो गाड़ी नहीं जाता है, ये भी तकलीफ है। आजकल तो रास्ता सामने है तो गाड़ी से जाना चाहता है, दूर का बात का बात है, लेकिन वह रास्ता का सामने में है लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं जा पाता है। दुख तो है, ये दुख मैं भी महसूस करता हूँ पक्का, लेकिन इसका भी हल निकालना पड़ेगा। थैंक यू। Delok hupak ngoluk ke holo midumango ko candidate kadung ex montri delok present MLA delok narmitahan mi bangsar delok goisar tai goisar delok taja bonung sar nolu him yele MLA pa ne rungong 32 rungong develop do ila delok melokono ke 1965-66 dege beda monam melokono ke purona digo tatakbo deke monam kirim nolu aido mobi kuman dem mobi kumilo ai emidong mobi kumamilo nolum kom exem madum inama nolu inko siang eung him ngo welcome dung delok noluk toroblok nolung modol lok noluk ayalok ngoluk honorable MLA delok aspiring candidate holok hingin ke 2024 holok contest enak hiding mo question atelani ko tatkiye siom bango toroblok jamlo moduk sarkul toroblok ngo tatkiye takamem general ngo question inka na contestant candidate kidingen contest enak candidate kidingen 32 ko mo general question jamlo agriculture farm horticulture farm te melokon no ke 1968 dekke government en bila metung dek veterinary ko bitung horticulture bitung agriculture department en bitung idola telo job oriented department bimang ngoluk amye huakom labor pa mang telo service lamang delok amoten takamem reserve la government en metula development
tehim kapayen ma tere ya memanyen ma job oriented ido nolu institution department aina ko langa lain langa lamain dema min public lang ku pelagi ya ngolu public amonge me development metung dem nolu kael emele ha na kiding tem ipelagi dun huak dengo question in kana makone deloke akone he ngolu he rowing gaki he inko rowing he gaki he boderu WRC pil botte na kadung ikuna me he plot control dorkar dung ami kiding holo dependung area ha whole population holo dependung ikuna me nolum ngoktat kiya him plot control shipping stream him plot control left bank area and imain him nolu kadun kaman emnam dem nolum ringkidung he immediate relief ko dorkar dung emlango kadung ikuna me dek abi question i na me kom kadung ai ida kom ngok hok level hok moge circle hok kem inke hidung dek dudaya ngok inke na me nolum candidate contest na kiding em takam inka na me especially honorable MLA talent tabon ngok inka na me patum bridge to rumgong route hi yala dudung ikuna me him hok lega no scheme ka na kol place tun dek place yen ma him yen imayen ami area itu dadine pura trans highway dadine ikai wa kom hial dudung rumgong important na place ko jaga ko ADC eldung official ato takame mul hokken na idung gari yobom kanmang bayi yobom kanmang dei kuna me hi bedahi important alo dung him kapelien dengok question akone delok jomlo circle ho ge sio ngol hi sio kama melokon no ke dung pura ngolo me insars kain ke rumgong ke ngolo min ko dung kadung idola holo dorkar lo area hok dorkar lo ngolu pangkimang hopta lo leir ko ya pelo lo leir ko aye del to agere ato ilamang public bazaru hempar dung holo full pleasure sio ko honorable MLA no ngolum langa bimain karon no huak siang lo dung den no iladun ilaman immediate relief ko public dorkar dung nokkelo thank you agom devong ठीक है ये मोपुंग का जो गामबुरा तातोंग मुबांग जो बोला है और हमारे मामा जी DC तातिन जो एक सीनियर वहाँ का लीडर है ये क्लब करके जो आप पूछ रहा है ठीक है रास्ता फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी MLA आता है मेरा एक सोचने का जो मेरा कॉन्सेप्ट है MLA जो है जिस दिन आप MLA बना है फर्स्ट तो आप रास्ता को देखो रोड को देखो और रुमगोंग और पेसिंग जो पांगकेंग रोड जो है बिल्कुल चलने लायक का नहीं है ऐसे 5 years तो चला गया अभी मेरा मामा जी DC तातिन बोल रहा है अब स्कीम क्या डाला अभी स्कीम डाल के फायदा नहीं है 5 years तो चला गया अभी ऑलमोस्ट खत्म फाइनेंशियल ईयर खत्म अभी मार्च आते आते नया स्कीम डालेगा फरवरी आते आते तो इलेक्शन अनाउंस भी होगा उसका कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा उसका छोड़ ही दीजिए अभी नया जो MLA है वही का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आएगा और मैं पहले भी जब मेरा डिक्लेरेशन MLA कैंडिडेट जब मैं करेगा बोल के डिक्लेयर कर रहा था उस समय भी मैं बोला है मेरा प्रायोरिटी तो पातुम तो रुमगोंग रोड ADC हेडक्वार्टर और पातुम तो जो पांगकेंग पेसिंग जो रोड था ये दोनों तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको देना है 1 साल का अंदर में आप स्कीम दे के बिल्कुल सेंक्शन कराना है सेकेंड ईयर में शुरू कराना है ये तो हम दिल में तय करके रखा है ये तो आप पब्लिक बोलो मत बोलो उसके लिए हमको फिर से बहुत दो मत दो लेकिन ये हम करेगा ये तो बिल्कुल और वो तो है और एक बात हमारे पब्लिक भी तो डेवलपमेंट के लिए वोट देता है ना नहीं देता ये बात भी है ना उस हिसाब से इशू बेस्ड वोट भी देना चाहिए आप बिल्कुल डेवलपमेंट भी दिखाई नहीं देगा तो भी आप उसका गुण गाते रहेगा ये भी तो नहीं होगा कल को हम MLA बनेगा हम काम नहीं कर सकते तो हमको स्टेट वाइज रिजेक्ट करो ये तो मैं बोलता हूँ आप MLA है मतलब डेवलप करना है
डेवलपमेंट लाना है, अच्छा अच्छा पैकेज लाना है, कोशिश तो करना है ना, वो तो है। फिर ये फार्म जो जमलो फार्म रिलेटेड में मामा जी बोला है, ये बहुत वहाँ जमलो फार्म जो जमलो सीओ जो हेडक्वार्टर भी वहाँ वही में है। ये बहुत ही एक बहुत बड़ा अच्छा जगह जो है गवर्नमेंट को दे के रखा है। जमलो चारकुल जो है दे के रखा है और वहाँ वेटरनरी भी चल रहा है। लेकिन बात तो सही है, अगर करना है तो प्रॉपरली फुली यूटिलाइज करके वहाँ पैसा भी अर्न करो, उसके बाद कुछ कुछ लोकल एम्प्लॉयमेंट भी दे दो। प्रॉपरली करेगा तो वहाँ में कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। आप हमारे जमलो फार्म के अंदर में सीओ ऑफिस बनाया, आप जाके देखिए, बिल्डिंग जो है अभी गिरने वाला है, सीओ आने से भी बैठने लायक का नहीं है। मैं खुद विजिट करता हूँ, दुख लगता है। और एक बहुत ही पॉपुलस हमारा जमलो सर्कुल जी है, पॉपुलेशन बहुत है और वहाँ में तो एवरीडे सीओ को ढूंढता है। लास्ट टाइम भी मैं तो बोला भी था, डीसी को भी हम रिक्वेस्ट किया था, जब तक नया सीओ नहीं आता है तो उसमें तागाम बिबांग को टाइमिंग के लिए रखो ना। तागाम बिबांग जाने दो, वहाँ सीओ आएगा बोला है, कहाँ आज तक आया है? ये तो बहुत बड़ा इशू है। कल को स्कूल जब एडमिशन होता है तो वहाँ में एसटी बनाना है, पीआरसी बनाना, इनकम टैक्स इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, रुमगोंग जाएगा। रुमगोंग में जिसका गाड़ी नहीं है कहाँ से जाएगा? इतना बस्तीला जो है और पॉपुलेशन भी वहाँ बहुत है। तकलीफ तो बहुत तकलीफ है। इमीडिएटली ये तो सीओ तो सिटिंग एमएलए जो है सीओ लाने में चाहे तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये मैं भी सोचता हूँ। हमारा तागा मुबांग जी जो सीओ था वो भी चला गया, उसके बाद फिर एक तो कोई गारा कोई आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है बोला, वो भी तो नहीं है। वहाँ कोई सीओ नहीं है। मैं खुद अपना वहाँ का चारकुल बिलोंग करता हूँ, जमलो चारकुल का अंदर में मैं भी बिलोंग करता हूँ। वहाँ सीओ तो बहुत ज़रूरी है। सीओ नहीं होने का कारण से बहुत तकलीफ तो है, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। ये तो मैं खुद भी देख रहा हूँ। इसलिए अभी वहाँ हम लोग को डेवलपमेंट तो करने का बहुत है, लेकिन प्रायोरिटी तो रुमगोंग रोड, रुमगोंग पातुम टू रुमगोंग रोड, पातुम टू जमलो पांगकंग रोड, ये तो आपको जो भी एमएलए बनता है और हम बनता है तो हम तो बोलने का नहीं है। मेरा तो टॉप प्रायोरिटी में वो है, 2 साल के अंदर वो सेंक्शन करके काम शुरू करना है। थैंक यू। सर, इन्होंने सॉइल इरोजन के बारे में भी कुछ कहा है। सॉइल इरोजन का होते रहता है वहाँ पे। वहाँ पेसिंग तो एक्चुअली पेसिंग एरिया जो है ऑलमोस्ट अभी शायद सियोम नदी का अंदर होना भी था होगा 2000 वहाँ 2-3 उस समय था, उसमें भी सेंक्शन लेके उसमें तामियो तागा सर साहब एमएलए था, उसका नेतृत्व में भी सेंक्शन लेके वहाँ प्रॉपरली प्रोटेक्शन करने का बाद वहाँ अभी गार्डनिंग बहुत हो रहा है। सियोम नदी का ठीक सामने में एक जगह है, उसमें पूरा प्रॉपरली अभी गार्डनिंग हो रहा है। अच्छा, ये भी फ्लड प्रोटेक्शन अगर नहीं करता तो चला जाना था। तो शिपिंग का सवाल है, शिपिंग का वजह से तो नदी उसमें जो रोइंग रंगकोप खेती जो है पानी मिल रहा है उसका वजह से, इसलिए शिपिंग रोइंग रंगकोप एरिया का प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। ये तो WRD डिपार्टमेंट का साथ में पहले भी बोला था, जो इसका बोंगने का जो केस है ऑलमोस्ट सेम है। ये भी WRD डिपार्टमेंट और CWC इनका ही अंदर में ये सब सेंक्शन होता है। तो ये बहुत माने इम्पोर्टेंट इशू है। ngô rum go dolu hologe abu abin kope dunge dola hilo darme tahan me ba me question ekta duita ko inku em dung ngo question de darme tahan me bang hupang no MLA candidate hala idung MLA idola 32 rumgong ST Assembly Constituency ara holo no kapa na develop la ilainem ono question को दूं। ये तो मैं पहले भी बताया है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो रास्ता तो कनेक्ट
एवरी विलेजेस। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद स्टाफ्स जो टीचर्स वगैरह चाहिए। फिर आता है मेडिकल। उसके बाद हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, फिशरी। ये मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो ही रहेगा। और मैं पहले भी जिक्र किया था, बताया भी था, हमारे पार्टी का तो होता है, एक पार्टी का जनरल मैनिफेस्टो होता है, उसका बावजूद अपना मैनिफेस्टो रहेगा। ये जो 4-5 पॉइंट्स। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चनियर ख़त्म होता है। तो प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं श्री ताइकुई सर से, सर अगर आप हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई मैसेज हो आपके सपोर्टर को तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद। आप सियांग एवं टीम फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो मौका दे रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कारण आपका वजह से मैं कुछ पॉइंट्स पब्लिक का सामने रख सकता है। और आपने सीरियसली एवरी विलेज जाके जो अभी सर्वे किया है, ये भी बहुत फर्स्ट इनिशिएटिव, दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव फर्स्ट आप लोगों ने टेकअप किया है। इसके लिए भी मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पब्लिक का ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। बेसिक सेकेंडरी स्कूल में मैं जनरल सेक्रेटरी था 89। उसके बाद यहाँ पासीघाट जैन कॉलेज में 1992-93 में आदि स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम 1995 को मैं 94-95 को मैं NSY प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए बना था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। उसके बाद जब 1996 में मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, स्टेट लेवल में मैं मंडल लेवल से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट का जितना पोर्टफोलियो है मैं एक्सपीरियंस हो चुका है। स्टेट ट्रेजरर भी था, वाइस प्रेसिडेंट दो बार 2 टर्म कर चुका है। उसके बाद अभी गवर्नमेंट में मैं स्टेट बायोलॉजी बोर्ड का चेयरमैन में हूँ। इस बार मैं किस लिए मैदान में उतरने जा रहा हूँ, आपको जहाँ कुछ प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी मैं बता सका हूँ। 32 रुमगोंग सबसे बैकवर्ड जगह हो रहा है एज ऑन टुडे। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा चुका हूँ। अभी रिसेंटली लॉन्गडिंग कौनसा जाके आया है, कौनसा तक हाईवे पहुँच गया, वहाँ से कौनसा से ईटानगर आपको हार्डली 6 आवर्स ड्राइव है। अभी इतना एकदम मोस्ट इंटीरियर जगह में रोड वहाँ हाईवे पहुँच गया। और हमारा रुमगोंग में एक भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ में हम गाड़ी 50-60 में भी जाने का एक भी रास्ता नहीं है। ADC हेडक्वार्टर अनकनेक्टेड बोलने से भी होगा। काइंग टाउन देखिए, काइंग टाउन, वहाँ आप जाएंगे ना होटल है, ना प्रॉपर IB है, ना सड़कें थोसा। एक तो IB है वो बोलने लायक का नहीं है। ये सब को देखते हुए मैं अभी इस बार 2024 में मैं भी मैदान में उतरने का जो मन बना लिया है। हमारे पार्टी हाईकमान भी हमको प्यार करेंगे। मैं अपना जीवन लाइफ जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में 25-30 इयर्स में दिया है और सिंसियरली काम किया है। उस हिसाब से हम जितना कंट्रीब्यूशन किया है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो हाई कमान है, चीफ मिनिस्टर है, पार्टी प्रेसिडेंट है, ज़रूर हमको इस बार पार्टी का उम्मीदवार के लिए हमको ही इन्नुक रखेंगे। उसमें मेरा पब्लिक को ये अपील है कि मेरा एक्सपीरियंस आप देखिए, मैं बचपन से लेके आज तक पब्लिक में हूँ। ना मैं कॉन्ट्रैक्टर करता है, ना मैं कभी नौकरी किया।
मेरा लाइफ पब्लिक में ही गुजर गया। तो उस हिसाब से मैं तो कोई एमएलए बन के ये करोड़पति होना, ये बिल्डिंग बनाना है, मैं उसका लालच में नहीं है। लेकिन 5 इयर्स का मौका देगा तो मैं ज़रूर डेवलपमेंट को हम पक्का रुमगोंग 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं बिल्कुल डेवलपमेंट करके दिखाएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। और अभी तक जो कैंडिडेट्स है, बहुत ही कैंडिडेट होने जा रहा है, सुनने में है। 2 तो ऑलरेडी है, सिटिंग है, और हमारा फॉर्मर ऑनरेबल एक्स मंत्री है तागा साहब, और अभी सुनने में आया, और 2 तो आ रहा है, और एक तो हमारे चारू भाई मुबांग जो है अनाउंस भी हो गया उनका भी। लेकिन मैं दावे का साथ कह सकता हूँ, पार्टी का एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारा कनेक्टिविटी का हिसाब से, ईटानगर हो, दिल्ली हो, हम ही एक ऐसा लौटा कैंडिडेट होगा इस बार एमएलए बनने का बाद जो डेवलपमेंट बिल्कुल ला सकता है। कारण जितना मंत्री है वो भी लास्ट 30-40 इयर्स पार्टी में काम करने वाला मिनिस्टर है, उनका जान पहचान। कार्यकर्ता जितना था वो एमएलए बन के बैठा है। चीफ मिनिस्टर, कोई स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर भी है, तो मिनिस्टर है सब, और यूनियन मिनिस्टर है, सब जान पहचान है। और उस हिसाब से हम जब स्कीम देंगे पक्का, ये तो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, उनका स्कीम को तो हमको प्रायोरिटी में रखना है, ये पक्का। उस हिसाब से हम जो भी स्कीम देगा, दिल्ली में भी हो, यहाँ ईटानगर में भी होगा, पक्का सैंक्शन होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस तो मेरा तो बहुत है, अभी तो इतना तो बताने का ज़रूरी नहीं है मेरा पास। मैं तो कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन दिल तो है, देश के लिए काम करेगा, स्टेट के लिए, अपना जगह के लिए काम करेगा। और पब्लिक को भी मैं अपील करता हूँ, आप पैसा मत बोलिए। जिसका पास पैसा है वो क्यों मैदान में उतरना चाहता है? उसका पास पैसा है तो क्यों मैदान में उतरना चाहता है? ये तो पब्लिक को फील लौटेगा ना, वो हो रहा है। हमको तो कोई लूटना नहीं है, हम तो ऑलरेडी ज़मीन में है, मैदान ज़मीन में है, ज़मीन में ही हम रहेगा। हमको तो एक्सपीरियंस हो गया ना, अभी हमको सिर्फ डेवलपमेंट करना है ना, हम कोई कुछ लालच नहीं है, और हमको कोई बहुत बड़ा आदमी बनना जरूरी बनेगा वो इस हिसाब से भी नहीं है। हमको तो पब्लिक का दुख दर्द को हम समझता है। बिना पैसा में, बिना गाड़ी में, हम तो एक्सपीरियंस है ना, गुम चुका है ना, लास्ट 30-40 ईयर्स से देख रहा है। इसलिए जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम को, जो गांव में बैठा है उसका प्रॉब्लम को, जो रास्ता जहाँ जरूरी है वो तो मैं देख रहा हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कभी 5 इयर्स में गुड अप विटनेस होगा, 5 साल में हमको जो भी काम करेगा पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए करेगा। ना मेरा परिवार से कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, ना कोई मैं कॉन्ट्रैक्टर खुद करेगा, मेरा जो भी हो पब्लिक के लिए करेगा, और पब्लिक ही मेरा बॉस होगा, पब्लिक ही मेरा भगवान होगा। पब्लिक जैसे चाहेगा हम ऐसे करेगा। और 5 इयर्स में आप, 5 साल में आप, इंडिविजुअल लाइफ नहीं है ये मैं बोलता हूँ। 5 इयर्स में आपको तो अमीर हो गरीब हो इसका पावर है, जिसको उठाएगा वो तो पब्लिक का प्रॉपर्टी हो गया। आप प्राइवेट लाइफ चाहिए तो आप क्यों कॉन्टेस्ट करेगा यार? आप बिजनेस करके रहो ना, आप नौकरी करके रहो ना, कोई भी हो, किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ। 5 इयर्स में आपका प्राइवेट लाइफ नहीं है, आपका इंडिविजुअल चाहिए तो टाइम चाहिए तो आप पॉलिटिक्स ही मत करो। 5 इयर्स में पब्लिक का बात को सुनना है, उसका जो दर्द का समझना है, एरिया का डेवलपमेंट को अपना प्रायोरिटी में लेना है, और स्कीम लाके प्रमोट करना है अपना लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ को, लोकल बिजनेसमैन को, वो है। तो मैं अपील करता हूँ इस बार पक्का पब्लिक जो है हमको ज़रूर साथ देगा। आप
पैसा है बोलेगा, आपका हर घर में तो करोड़ों है, लेकिन हर घर में आपको 10 लाख तो देने वाला नहीं है, बिल्कुल देने वाला नहीं है। आपको देगा लेकिन उसको फिर लूटेगा ना, जो फाइनेंस किया वो तो फिर उसको तो लूटना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। इसलिए पब्लिक को भी मैं ये अपील करता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आप भी तो डेवलपमेंट का रिलेटेड में वोट देना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए अभी वोट देना चाहिए। मैं ज़िंदगी में मैं कैमरा का सामने बोलता हूँ, मैं लास्ट 40 इयर्स तामियो तागा का साथ, ऑनरेबल हमारा पिताजी जैसे उनका साथ मैं 40 इयर्स साथ दिया है। आज तक मैं 1 रुपया भी इलेक्शन के लिए उसका 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैं कैमरा का सामने बोलता हूँ, आज तक तेल डालने के लिए 1,000 भी मैं नहीं लिया हूँ। बहुत क्लीन है। उस हिसाब से जिसका पास रुपया है वही एमएलए बनते रहेगा। अच्छा, जिसका रुपया नहीं है वहाँ भी बहुत स्टूडेंट लीडर है, बहुत क्वालिफाइड है, उसका कब मौका मिलेगा। इसलिए इस बार मैं पैसा नहीं होने से भी, मैं रुपया इतना करोड़पति नहीं होने से भी, मैं इस बार मैदान में उतरेगा, अच्छा से काम करेगा, और हमारा पार्टी हाईकमान जो है, मैं पार्टी के लिए जिस हिसाब से काम किया, पक्का पार्टी का प्यार, गवर्नमेंट का प्यार हमको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।